in Pakistan. So, should we start? Yeah, okay. So, thank you very much. This training has been delivered from the platform of Aspire Training and Consulting Pakistan. Thank you very much to the staff. Thank you very much to our respected Mr. Fazal Mukim Sahab. Thank you so much for taking me aboard for this training. So, very brief introduction of myself is, I am Arif Javed Kiani, and I have been into the industry of the sales and marketing since last 20 years. And I have experience in telecom sector, in the tobacco sales, in the fast moving consumer goods and stuff. Lastly, I would like to say welcome to all of the participants of this training session. Medium would be both English and Urdu mixed for a better understanding of the audience. Let's start with the stuff now, inshallah. And please raise the questions wherever you want. I want to keep this session interactive, and so that there should be a better learning and understanding on both the sides. So let's start. Please do the slide. So if we talk about today's session, so that is basically excelling in the selling skills. So how one can excel in the selling skills, or in other words, our question is how we can develop a sales champion. So if we talk about development of a sales champion, so in general perception, I would want to ask my audience, in your perception, who can be a sales champion? What exactly is the definition of a sales champion? Can you please elaborate? Can you please throw some light on it? If we can have some point from the audience on their perception of being a sales champion, what exactly is a sales champion? A person having good communication skills. Great, great, great. Any other points? Any other attributes of a sales champion? A person who has a strong grip on expertise of what he's selling. Strong grip on what he's selling. A point we have that communication skills बड़ी अच्छी होनी चाहिए. Very good. इसके अलावा कोई point आपके ज़हन में आता है? The person should be analytical and he has a good communication skills, negotiation skills. Very good point, mashallah. Very good point. Analytical is a very good point. Any other points? जितना we will be interactive, जितना ज़्यादा हम interactive session में जाएंगे, इंशाल्लाह सबको उतना मजा भी आएगा इस कोर्स को करने में. सेल्स के रेवेन्यू टारगेट्स मीट होने चाहिए. की टारगेट्स वेरी गुड, क्योंकि टारगेट अचीवमेंट जो एक सेल्स के बंदे का जो कोर है, दैट इज बेसिकली द टारगेट अचीवमेंट. वेरी राइट, वेरी राइट. एनी अदर पार्टिसिपेंट? फैसिलिटेटर प्लीज इसको आप ले जाइए, स्लाइड शो मोड पे ले जाइए प्रेजेंटेशन को. सो अगर हम थोड़े से एट्रीब्यूट्स को अगर देखें यहाँ पे, सो द वन हु कैन ड्राइव द हाई सेल्स, who can achieve all the targets, who is able to manage in tough scenarios, never gives up, always number one. So एक sales champion की जो general perception है, वो ये 3-4 चीजें हैं. Remember, high sales drive कर रहा है, तमाम targets achieve कर रहा है, tough scenarios के अंदर manage कर रहा है, he never gives up, and he's always on the top, so number one. Next slide please. So अब अगर हम बात करते हैं कि ये तो है जनरल परसेप्शन फॉर अ सेल्स चैंपियन. सो अगर हम बात करें कि जी जो उसके व्हाट कैन बी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सेल्स चैंपियन, वो क्या वो चीदा खसूसियात होंगी
जिसके तहत हम वी कैन गेट जो द गाय इज अ सेल्स चैंपियन. सो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. फॉर एग्जांपल, बहुत ही बुनियादी चीज कि अ सेल्स चैंपियन वुड बी वेरी मच क्लियर अबाउट हिज जेडी एंड हिज रोल. ही अंडरस्टैंड्स द बिजनेस कि वो किस बिजनेस में है. फॉर एग्जांपल, अगर आप एक मेडिसिन कंपनी से हैं, सो आपको अपना जेडी और रोल पता होगा कि जी मुझे अपनी प्रोडक्ट को फलां जगह जाके इंट्रोड्यूस करवाना है. दिस इज माय जेडी. अगर आप एक सेल्समैन हैं, आपके जिम्मे रोज की 30 से 40 शॉप्स के ऊपर एक सेल्स कॉल करना है, सो ही नोज हिज बेसिक जेडी इज टू एटलीस्ट विजिट 30-40 आउटलेट्स अ डे. अगर आप बैंकिंग सेक्टर में हैं, डिपॉजिट मोबिलाइजेशन में हैं, and you have to, your job is to bring in certain accounts, to bring in, the certain business to your bank. So कितने clients को आपने जाके visit करना है, आपको per visit आपकी productivity क्या होनी चाहिए, आपका actually organization के अंदर आपका role क्या है. So एक basic characteristic of a sales champion is to know his JD and his role, to understand the business. He will be a very good team player, जो कि पूरी टीम के साथ मिलकर चल रहा होगा, जो कि एक टीम के अंदर जो उसकी एक रिजल्ट डिलीवरी है, दैट वुड बी ऑसम. बहुत अच्छी प्लानिंग कर सकता हो, जिसको अपना पता हो कि अच्छा जी मैंने आज के दिन में इतना टारगेट करना है. दैट इज बेसिकली अ मेडिसिन, इट्स अ बैंकिंग प्रोडक्ट, इट्स अ एफएमसीजी प्रोडक्ट, इट कैन बी a telecommunication product, whatever it is. So he can, plan very good based on his knowledge about his JD, his role, the business of his organization, or if that business is a personal business, so he should know the things and things, the in and out of the business, and the team player के वो लोगों के साथ किस तरह से मिलके एक टीम बिल्डिंग के अंदर सिनेरियो में रहते हुए अपने बिजनेस रिजल्ट्स को ड्राइव करे. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. ऑन टॉप ऑफ इट, तमाम जो प्लानिंग करे उसको वो एग्जीक्यूट भी कर सके. कैन बी अ वेरी गुड एग्जीक्यूटर. ही नोज हिज कस्टमर एंड हिज टारगेट मार्केट. ऐसा ना हो कि फर कोट बेचने वाला जैकबाबाद सिब्बी का रुख करे, या ऐसा ना हो कि आप जो है वो मलमल के कुर्तों के लिए एक अंटार्कटिका में जाके बर्फ खाने में जाके उसको बेचने की बात करें. सो अपनी टारगेट मार्केट, अपने कस्टमर की नो हाउ होनी, कस्टमर की इकोनॉमिकल सिचुएशन की नो हाउ होनी. So this will be a characteristic of a sales champion. He should know everything. उसके अलावा उसके अंदर ये करेज का होना कि वो टफ से टफ सिनेरियो में अपनी बेहतरीन शॉट डिलीवर कर सके. He should have a very good negotiation skill. वो उसके पास नेगोशिएशन का बड़ा अच्छा नॉलेज होना चाहिए, और नेगोशिएशन के लिए बुनियादी ईमानदारी बड़ी जरूरी है, जो कि एक मेन कैरेक्टरिस्टिक है फॉर अ सेल्स गाय, एक सेल्स चैंपियन के लिए, कि वो अपने काम को ईमानदाराना अंदाज में वो प्रोडक्ट सजेस्ट करे अपने कस्टमर को जिस प्रोडक्ट की वहां पे जरूरत है. ये जो हम बातें सुनते हैं कि जी हस्बैंड का कफन लेने आने वाली औरत को साड़ी बेच दी और बड़ा अच्छा सेल्समैन है, दिस इज नॉट अ गुड सेलमैन. सेलमैन वो है जो कि आपकी जरूरत को, आपकी नीड को, आपकी वांट को सेटिस्फाई करे, आइडेंटिफाई करे कि असल में आपको जरूरत क्या है, फिर उसके मुताबिक आपको सजेस्ट करे कि वो क्या मैंने आपको देना है, और उसी हिसाब से आपके साथ नेगोशिएशन करे, आपको गलत चीज बेचने के लिए नेगोशिएट ना कर रहा हो. सो ये बुनियादी जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सेल्स चैंपियन इज टू सेल द राइट प्रोडक्ट टू द राइट कस्टमर फॉर अच्छी करना जानता हो, और अपनी तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पे, अपने तमाम इल्म की बुनियाद पे और अपनी मेहनत की बुनियाद पे would be able to grow the business of the organization. This is the main characteristic of the sales champion. So everybody agree with this? So that we can move to the next slide. आप लोगों की इनपुट के बगैर हम आगे नहीं बढ़ेंगे, ताकि जो एक इंटरेक्टिव सेशन रहे और हम सब इसको एंजॉय भी कर सकें. जी सर. So let's move forward. Next slide पे जाइएगा प्लीज. जब हम बात करते हैं कि एक जो सेल्स का एक चैंपियन है, उसकी आपने कहा कि जो उसकी जनरल परसेप्शन कि वो कैसा होना चाहिए, वो दिखना कैसा चाहिए, उसके अंदर उसके कोर फीचर्स, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए, वो हमने बात की. अब हम मजीद आगे बढ़ते हैं कि इफ यू हैव टू डेवलप अ सेल्स चैंपियन, जो कि मेरे अंदर भी डेवलप होना चाहिए, आपके अंदर भी होना चाहिए,
और जितने लोग इस प्रोफेशन से रिलेटेड हैं उन सब के अंदर उस सेल्स चैंपियन का डेवलप होना बड़ा जरूरी है। जो कंप्लीट पैकेज है एक सेल्स चैंपियन के लिए, इसके अंदर दो चीजें हैं। एक साइड उसका एटीट्यूड कैसा है, दूसरा उसका नॉलेज कैसा है। एटीट्यूड और नॉलेज, इन दो के बगैर एक सेल्स चैंपियन का एक कंप्लीट पैकेज होना इज नॉट पॉसिबल। सो हम ये बात करते हैं कि जब आप एटीट्यूड की बात करते हैं तो एटीट्यूड क्या करता है एक सेल्स पर्सन के लिए, और नॉलेज एक सेल्स पर्सन के लिए क्या करता है। सो जो एटीट्यूड है वो बेसिकली एक सेल्स पर्सन को ताकत देता है। दैट गिव्स यू पावर, दैट गिव्स यू मोटिवेशन, दैट गिव्स यू ड्राइव। दैट एटीट्यूड, इफ दैट एटीट्यूड इज देयर, so you will get the right motivation, you will get the right power, and you will get the right driving force. अब आपके पास ताकत बहुत है, आपका जज्बा बहुत है, आपका एटीट्यूड बहुत है, लेकिन आपके पास नॉलेज नहीं है। मैं इसकी I would like to quote an example कि if a guy who doesn't know the basic formulas of mathematics, just on the base of his common sense, he cannot resolve, you know, the complex equations of mathematics or the physics. वो numerics उस तरह से नहीं कर सकता until and unless he has the knowledge of that, you know, इस फार्मूला नॉलेज उसके पास होना बहुत जरूरी है। जज्बे की बुनियाद पे रियाजी का या मैथमेटिक्स का एक मुश्किल सवाल हल करना would not be possible. One has to know the formula, one has to have that knowledge so that he can, you know, implement that knowledge. So you have right motivation behind the scene and you should have the right knowledge at the same time. So in दो के बगैर one cannot move ahead with, you know, a complete package for a sales champion. So यहाँ पे जब हम knowledge की बात करते हैं, जब हमने attitude की बात की तो हमने कहा that gives you drive, that gives you power, that gives you motivation. But when we talk about the knowledge, so knowledge actually gives you the satisfaction. आप जो कर रहे हैं, आप जो हल कर रहे हैं, जो चीजें आप आगे बढ़ा रहे हैं, the things we are, you know, taking ahead. So you will have that satisfaction within your, you know, inside your heart कि मैं जो कर रहा हूँ इल्म के मुताबिक वो मैं दुरुस्त कर रहा हूँ। So एक right satisfaction है। That knowledge gives you the guidelines. Knowledge आपको बताता है कि अगले स्टेप पे आपको यूं करना है, इसके बाद आपको यूं करना है। वो that will, you know, that's how you will be moving ahead with the very good combination of the right attitude and the right knowledge. Next slide please. So जब हम attitude की बात करते हैं, so when we talk about the attitude, so attitude के अंदर the right attitude is a can do approach. लेकिन जो भी मैं कर रहा हूँ वो मैं differently करूँ. This will help you finding out the new ways of thinking, the new ways of executing, the new ways of, you know, आप एक नए रास्ते, नई जिद्दत और नई चीजें आप दरियाफ्त करते हैं जब आपका एक एटीट्यूड कैन डू होगा। मैं जो भी करूंगा I'll do it differently. So that right attitude need to be there. So इसकी एक मैं अक्सर जब भी मैं ट्रेनिंग्स करवाता हूँ within my organization as well, so मैं अक्सर ये एग्जांपल देता हूँ कि when, you know, there's a raining outside, so the birds have the issue कि हमने बारिश से बचना है, so they, you know, they try to hide themselves in the safe places like, you know, the trees and the shades and the stuff. और वहीं पे लुकमा अजल भी बन जाते हैं, कोई शिकारी का शिकार हो जाते हैं, कोई किसी सांप का शिकार हो जाते हैं वगैरह वगैरह। ये उन परिंदों का एटीट्यूड है अपने इशू के अगेंस्ट जो वो एक्शंस लेते हैं उसके ऊपर। लेकिन when we talk about the eagle, जब हम इकाब की बात करते हैं, शाहीन की बात करते हैं, so eagle starts flying above the clouds, वो बादलों से ऊपर जाके परवाज शुरू कर देता है। उसने भी बारिश से बचना है, लेकिन उसका एटीट्यूड है जो कि उसको नीचे की जगह पे पनाह लेने के बजाय ऊंची जगह पे परवाज को मजबूर करता है। That is the attitude. I would like to quote one more example here. जैसा आपने देखा होगा कि in the countries abroad, so there are students जो कि काम भी करते हैं, साथ पढ़ाई भी कर रहे होते हैं। So I know one of the student who was, you know, working for some woman. वो उसके घर का, उसका गैराज का कुछ काम वाम करता था, उसकी गाड़ी वगैरह धोता था, उसके गैराज की सफाई करता था। So one fine morning he went to a general store and he asked the shopkeeper that may I use your telephone? So
he dialed some number and he's, start searching for some job. And he was, directly with the lady, he was asking simple questions. If you, give me a chance, so I can, wash your garage, I can wash your, car against $5. And the lady said, look, I have already a guy is doing good job. $6 पे वो काम कर रहा है, आप 5 पे कह रहे हो, लेकिन I'm satisfied with this performance, so I don't need to change him. Then the guy offered him, I will paint your, the garden walls as well, and I'll, take care of your garden as well in that $5 per hour. So she said, your offer is very good, but I'm satisfied with the performance of the guy who is already working, so I'm sorry. The shopkeeper was listening to this and he offered the guy a job against $6 and said, I like your attitude, so you tried your level best to convince the lady, but unfortunately she had that guy, so I'll offer job here, so tum meri dukaan pe kaam kar lo. And the guy refused and he said, look, I am the same guy who's already working for that lady. I was just checking my performance. So that was the attitude as well. ये भी एक attitude है कि मैं अपनी performance को check कर रहा हूँ और मुझे नई job की जरूरत नहीं है. I just called up my existing employer. मैंने उससे phone किया, मैंने उससे पूछा and I was checking my performance. So how can I improve it? So improve towards the improvement. That is also a right attitude. So he was doing that thing differently. Next slide, please. So जब हम attitude के ऊपर आगे बात करते हैं, so to have the right attitude, एक पैराडाइम शिफ्ट बड़ा जरूरी होता है. सो आप लोगों को आइडिया है कि व्हाट इज अ पैराडाइम शिफ्ट? ये क्या चीज है जो कि एक राइट एटीट्यूड की तरफ जाते हुए में रोकती है? ये पैराडाइम है. ये आपके जहन में एक खामख्याली बन जाती है कि यहाँ में ऐसा होता है, और उस पैराडाइम शिफ्ट के बगैर एक राइट एटीट्यूड की तरफ जाना पॉसिबल नहीं होता. सो आई वुड लाइक टू थ्रो क्वेश्चन टू द ऑडियंस. Come on guys, आप बताइएगा थोड़ा सा कि what is a paradigm shift आप लोगों के जहन में है. So if anybody can brief what exactly is a paradigm. Gee, any thoughts? Any point on it? Any lead? Any clue? So should we move ahead with the clarity on the paradigm shift? So in order to understand the paradigm shift, so you have to first understand this example, which is coming in the following slides. We all need to understand what exactly is a paradigm and how it is formed. When we came to know that, how a paradigm is formed, then we can obviously break it and we can, get a better attitude and we can, go for a better paradigm shift. So next slide, please. So in past, there is a group of scientists. So they did an experiment. They put 5 monkeys in a cage. They placed a ladder in between the cage, and they placed some bananas on top of the cage. So when monkeys saw the banana, so some of the monkeys, they go up to the ladder to get the bananas. And when one monkey was up, so what the scientists do, they throw a cold water shower on the rest of the monkeys. And they repeat this practice for some of the times. Eventually, the monkeys got that understanding that if somebody goes up, so there will be a cold water shower. So what the monkeys started doing, they started beating their fellow who is going up to the ladder. So next time, the one monkey went up and, he got beaten. Second monkey went up, so he also got beaten. So all 5 monkeys get, beating from their fellows. But interestingly, there was no shower at that time. So there was a thought that whenever if somebody will go up, so we will receive a cold water shower. So they start beat each other and stuff. So the next step the group of scientists did, they replaced one of the monkey. New monkey came in,
and he straight away go up to the ladder to get some bananas, and rest of the monkeys start beating him. So he don't know why he got that beating. Then they replace second one, he get the same treatment, then the third, then the fourth, and eventually all the monkeys get replaced. And now we have all 5 monkeys who don't have that experience of that, cold water shower. But they were doing the same practice. We were going up, they were beating him. We were going up, they were beating. So the scientist says that if somebody knows the language of the animals, and if we throw a question to the animal that, why you guys are doing it? So interestingly, the answer would be, यहाँ पे तो ऐसे ही होता है. So अगर आप देखें तो आपकी रोजमर्रा जितनी भी एग्जाम्पल्स आती हैं वो बस ऐसी हो, यहाँ पे तो ऐसी हो. आप देखेंगे गलत गाड़ी पार्क की, यहाँ पे तो ये ऐसी हो. किसी ने गलत, अच्छा किसी ने भी कोई एक्सपीरियंस उस तरह का नहीं किया हुआ. टैक्स क्यों नहीं आप पूरा दे रहे? वो जी यहाँ पे तो ऐसे ही हो. आपको कभी टैक्स इंस्पेक्टर ने तंग किया? आपका अपना एक्सपीरियंस हुआ? नहीं, मेरा तो नहीं हुआ. लेकिन आपने क्या किया? लेकिन वो ये यहाँ पे तो ऐसे ही होता है. ये वो पैराडाइम है. जब ये बन जाता है तो ये आपको अपनी सोच तब्दील नहीं करना पड़ता. So it will never allow you to change your thoughts and to go for a positive attitude. So firstly, we all need to understand how a paradigm formed. हर paradigm जो हमने इस example दी, you can put these things in the number of your examples in your daily life, your routine life, and you will know कि बहुत सारी चीजें हैं जो paradigm है, जो खामखा एक paradigm बन चुका है और उसका shift किए बगैर हमें वो जी बगैर झूठ बोले कस्टमर आपका स्टॉक नहीं लेगा. अच्छा ये पैराडाइम बन गया. अच्छा बगैर बहुत सारी बातें किए हुए, बहुत सारी उसको सबज बाग दिखाए हुए आपकी प्रोडक्ट सेल नहीं हो सकती. बहुत सारा झूठ बोले बगैर आप, दिस इज ऑल पैराडाइम. अगर आप इसके अंदर अभी जो फॉलोइंग जो आपके स्लाइड्स होंगी, जब हम इसके नॉलेज की बात करेंगे, देन यू विल कम टू नो के कितना क्रिस्टल क्लियर ये प्रोसेस है सेलिंग का और ये कितने अच्छे अंदाज में किया जा सकता है. वो तमाम पैराडाइम्स हमें तोड़ के अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव करना है और अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है टुवर्ड्स अल्लाह एंड टुवर्ड्स व्हाटएवर वी थिंक विद इन आवर हार्ट्स कि सच्चाई कहाँ पे है और उस सच्चाई को हमने कैसे अडॉप्ट करना है और फिर उस सच्चाई को अपनी रोजमर्रा रूटीन में कैसे लेके आना है. दैट विल ये वो चीज होगी जो कि सिलेक्ट करेगी वो वे फॉरवर्ड जिस पर रहते हुए वन कैन बी अ selling champion. Next slide, please. So, जब हम एटीट्यूड जो एक साइड हमने देखी, जब हम दूसरी साइड पे आते हैं, so किस तरह का नॉलेज एक सेल्स चैंपियन के लिए जरूरी है? What kind of knowledge a sales champion must have to be perfect in his profession. So ऑडियंस की तरफ से कुछ पॉइंट्स अगर हैं तो प्लीज दे दीजिए कि आप लोगों के जहन के मुताबिक क्या चीजें नॉलेज के अंदर कवर होनी चाहिए, क्या क्या चीजें होनी चाहिए जो कि एक सेल्स चैंपियन को पता होनी चाहिए जब हम उसकी इल्मियत की बात करें, जब हम उसके नॉलेज सेट की बात करें. आप लोग प्लीज इस पे अपनी इनपुट जरूर देते जाइए ताकि हम इसको एक अच्छा इंटरेस्टिंग इंटरेक्टिव सेशन बना सकें, क्योंकि एक अच्छी लर्निंग आई बिलीव विदाउट इंटरेक्शन, एक अच्छी जो है वो क्रॉस कम्युनिकेशन के बगैर वन कैन नॉट गेट अ बेटर नॉलेज. सो आई वुड अर्ज कि प्लीज आप इस पे अपना पॉइंट जरूर दीजिए. सर सबसे पहले तो एक चैंपियन को उसको होना चाहिए कि बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग, प्रोडक्ट की नेचर, प्रोडक्ट की राइट लोकेशन, राइट प्लेसमेंट और उसकी जो है ना मार्केट डायनामिक्स, हाई फुटफॉल, लो फुटफॉल और इसके अलावा मीडियम फुटफॉल. इस तरह इनके पास जो चम्प्स कस्टमर्स होते हैं उसके नॉलेज होनी चाहिए, हर मार्केट्स की या हर आउटलेट्स की उसकी एवरेज सेल वगैरह वगैरह उसके पास पता होनी चाहिए. ये एक चैंपियन के पास होगी तो वो डेफिनेटली उसकी एग्जीक्यूशन, उसकी जो प्लानिंग, चाहे शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म हो, ही विल बी डेफिनेटली एग्जीक्यूट एज वेरी वेल. वेरी गुड पॉइंट्स, माशाल्लाह, बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं आपके.
मजीद मैं बाकी लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज अपने अपने पॉइंट्स दीजिए, क्योंकि एक सर्टेन एफएमसीजी इंडस्ट्री और एक रिटेल और होलसेल कवरेज मैकेनिज्म के हवाले से हमारे दोस्त ने बहुत अच्छे पॉइंट्स बताए हैं। मैं चाहूंगा कि कुछ और वेरीड इंडस्ट्रीज से भी कुछ पॉइंट्स आ दें ताकि हम एक मुकम्मल अहाता कर सकें कि क्या क्या नॉलेज का वो सेट होना चाहिए हमारे अंदर, सो दैट वी कैन बी अ वेरी गुड सेल्स चैंपियन। सो प्लीज नेक्स्ट भी जो है तो पॉइंट्स लाजमी दीजिएगा अपने। जी, तो बुनियादी जो पॉइंट्स हैं with regards to the enhancement in the knowledge. Sir, I guess one of the important part would be the RTM. कि हमारी strategy क्या होनी चाहिए? For example, we have all the knowledge, we know about the philosophy of the sales, या जो भी हम जानते हैं, but if we don't have the right RTM in place, it would be difficult, to So with the right strategy, yes, you are very right. It's a very good point कि आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। सो इसका नॉलेज होने का भी एक मैं समझता हूँ कि दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये भी बहुत जरूरी है। अगर हम एक एक बात करें, एक नटशेल में अगर हम बात करें और तमाम इंडस्ट्रीज को जहन में रखते हुए बात करें, सो सबसे बुनियादी चीज ये है कि एक क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है कि सेलिंग एक्चुअली क्या है। जो मैंने पहले एक एग्जांपल दी थी कि आप प्रोडक्ट को नीड के मुताबिक मैच करके देते हैं और उसी के ऊपर अपना पूरा बिजनेस मॉडल खड़ा करते हैं, सो दैट वुड बी द राइट स्ट्रैटेजी। सो आपको सेलिंग की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। उसके अलावा जब एक सेल्स चैंपियन को सेलिंग की डेफिनेशन पे मुकम्मल अबूर हासिल हो जाए कि सेलिंग असल में है क्या, ये जो मेन जो कोर कॉन्सेप्ट है इसका वो क्या है सेलिंग का, जब आपको वो पता चल जाए तो फिर आपको उसके पीछे एक फलसफा खड़ा करना पड़ता है। देयर शुड बी अ फिलॉसफी के किस थॉट प्रोसेस के तहत मैं इस पूरी सेलिंग एक्टिविटी को करूं, वो क्या मेरा फलसफा हयात मेरा क्या होना चाहिए, मेरी फिलॉसफी फॉर लाइफ एज अ सेल्स चैंपियन क्या होनी चाहिए कि मैं उस फिलॉसफी को, उन रूल रेगुलेशंस को फॉलो करूं और इस सेलिंग एक्टिविटी को उस अंदाज में पूरा करूं ताकि मेरी जो इनर सेटिस्फेक्शन है दैट नीड टू बी देयर, मेरे दिल की तसल्ली बहुत जरूरी है। और बिलीव कीजिएगा कि इंटरनल सेटिस्फेक्शन के बगैर ना आपको काम में मजा आएगा और ना आपके काम में वो असरात होंगे। और इंटरनल सेटिस्फेक्शन के लिए राइट नॉलेज ऑफ द सेलिंग एंड द राइट फिलॉसफी बिहाइंड दैट सेलिंग दैट नीड टू बी देयर। हम इस पे भी बात करेंगे। इसके अलावा जो सेलिंग एज ए एक्टिविटी है उसका प्रोसेस फ्लो क्या है और किस स्टेज पे क्या चीजें जरूरी होती हैं, इसके अलावा कितनी किस्में हैं और कितने मेथड्स हैं फॉर द सेलिंग एक्टिविटी। इस पूरी ये जो साइकिल है सेलिंग एक्टिविटी का कि सेलिंग क्या है, उसके पीछे फिलॉसफी क्या है, उसका प्रोसेस क्या है, इस पूरे काम का जो रिवार्ड्स और इसके चैलेंजेस क्या हैं, इसमें क्या मिलता है और क्या हमसे जाता है, कौन सी चीजें हैं जो हमारे लिए राहत का सामान है और कौन सी चीजें हैं जो दिलों पे बोझ बनती हैं। और फिर जब आपको इसके रिवार्ड, चैलेंजेस, मेथड्स, एक्टिविटी का प्रोसेस फ्लो, इसके पीछे फिलॉसफी और सेलिंग इटसेल्फ क्या है, जब आपको ये सब पता लग जाए तो फिर हम आते हैं हाउ पार्ट के ऊपर, जो कि मेरे एक दोस्त ने बहुत अच्छा एक बात किया कि जी आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, आपका आरटीएम क्या होना चाहिए, इसके बारे में नॉलेज होना बड़ा जरूरी है। तो हाउ पार्ट के अंदर इस सारे मामले को हम कैसे कवर अप करते हैं, सो लास्ट पॉइंट के अंदर हम उसको कवर अप कर रहे होंगे और इस तरह से ये सेशन जो हम आज का कंक्लूड करेंगे। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड विद ऑल द 5-6 पॉइंट्स जिनके ऊपर भी हमने बात की है। सो सबसे पहले सेलिंग पे बात करेंगे। सो इट्स अ वेरी सिंपल डेफिनेशन, बहुत आसान, कि अपने कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को एक म्यूचुअल बेनिफिट के मद्देनजर रखते हुए सेटिस्फाई करना विल बी अ सेलिंग एक्टिविटी। ये उस सूरत में जबकि आपको नीड्स एंड वांट्स का पता है, लेकिन इसके साथ साथ इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेल्स पर्सन कि वो फर्दर इसको एक्सप्लोर करे और आइडेंटिफाई करे। ही शुड हैव टू आइडेंटिफाई एंड ही शुड हैव टू जनरेट
the need based on the current scenario. For example, guy is sweating, उसका पानी उसके वजूद से निकल रहा है, उसके पसीने आ रहे हैं, गर्मी है. So one has to generate this need for him that you need a glass of water, you need a bottle of water because you are sweating. अगर आप पानी नहीं पिएंगे तो आप एग्जॉस्ट कर जाएंगे, and this will not be good for your health. So generate से मुराद यहाँ पे ये है कि जब एक सेल्स पर्सन अपनी आंखों से देख रहा और कस्टमर महसूस नहीं कर पा रहा कि मेरी असल में जरूरत क्या है, सो उसकी जरूरत को आपने उसकी जगह पे उसके शूज में खड़े होकर महसूस किया, आइडेंटिफाई किया, उस जरूरत को जनरेट किया और उसको इन्फ्लुएंस किया कि यू नो यू नीड दिस, और इसको पूरी ईमानदारी से किया, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के, अपने बिलीफ सिस्टम को सामने रखते हुए, क्योंकि बुनियादी ईमानदारी इसके अंदर शर्त है. सो उस नीड और वांट को सेटिस्फाई किया. सो दैट इज बेसिकली अ सेलिंग, जिसके अंदर सेलर का भी एक जो बेनिफिट है वो भी हो उसको, क्योंकि देयर इज अ बिजनेस बिहाइंड इट, और कंज्यूमर की भी एक नीड है. लेकिन देखें ये प्रोसेस मैं बार बार कहूंगा गलत हो जाएगा अगर आपके कस्टमर को एक चीज की जरूरत नहीं है और आप उसको देते हैं. सो ये सेलिंग एक्टिविटी नहीं है, ये सेलिंग की डेफिनेशन नहीं है. सेलिंग की डेफिनेशन है म्यूचुअल बेनिफिट्स के जरिए विन विन सिचुएशन क्रिएट करते हुए कंज्यूमर की नीड्स एंड वांट्स को अंडरस्टैंड करना, सेटिस्फाई करना और फिर उसको पूरा कर देना. दैट इज बेसिकली, और इस पूरी ये जो डेफिनेशन है इसके पीछे देयर इज अ कंप्लीट साइंस. सो वो क्या है, वो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. सो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और हम देखेंगे सेल्स एक्टिविटी क्या है, जब हम सेलिंग की डेफिनेशन को अंडरस्टैंड कर जाते हैं तो फिर हमें उस फलसफे को अंडरस्टैंड करना है जिस फिलॉसफी पे एक सेल्स पर्सन, जी बिल्कुल ये मैं इसको खैर रिलेट करना बहुत एक छोटा मुंह और बहुत बड़ी बात, मैं डॉक्टर इल्हाम इकबाल की बात करूंगा कि उनकी पूरी शायरी, उनकी पूरी जिंदगी एक फलसफा खुदी के आगे पीछे घूमती है. सो दैट यू नो द फिलॉसफी ऑफ द सेल्फ एस्टीम, इसने बर्रे सगीर के मुसलमान को वो गैरत और वो हिम्मत और वो ताकत दी कि जिसके तहत एक नया मुल्क जो है वो वजूद में आ गया. सो एक फलसफे का होना, कायदे आजम एक फलसफे के तहत उठे, काम काम और बस काम उनका फलसफा था, उनकी सेइंग थी ईमान इत्तेहाद तंजीम. सो जिसके तहत वो आगे बढ़े. ठीक है, और आप जितनी भी तारीख में शख्सियात उठा लें, आप शेक्सपियर को उठा लें, आप इस्लामिक उठा लें, आप दुनिया के किसी भी मजहब की बड़ी पर्सनैलिटीज को आप उठा लें, आप सोशल वर्क करने वाले लोगों को उठा लें, वो एक थॉट, एक फलसफा, एक फिलॉसफी के साथ उठते हैं, उस थॉट प्रोसेस के साथ उठते हैं और वो फिर छा जाते हैं और वो फिर अपने काम को बेहतर करते हैं. सेल्स चैंपियन की फिलॉसफी, उसके पीछे जो फलसफा है उसके क्या पॉइंट्स होने चाहिए कि उसका पहला फलसफा ये है कि सेलिंग इज हेल्पिंग, इज केयरिंग, इज प्रॉब्लम सॉल्विंग. ये कस्टमर की नीड्स को फोकस करने का नाम है. ये अपनी प्रोडक्ट को किसी के जिम्मे डालने का नाम नहीं है, ये अपनी प्रोडक्ट को किसी को पेलने का नाम नहीं है. मैं एग्जांपल दूंगा कि आपकी मार्केट की नीड एक एक्स वॉल्यूम है, उतना वॉल्यूम आप अपने कंज्यूमर को देते हैं, उतना वॉल्यूम आप अपने दुकानदार को देते हैं, उतना वॉल्यूम आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर को, यू सप्लाई दैट वॉल्यूम टू हिम. द मोमेंट यू एक्सीड दैट नीड एंड वांट, वहीं से डाउनफॉल स्टार्ट होता है, वहीं से कट रेट शुरू होते हैं, वहीं से बाकी मामला स्टार्ट होते हैं. डिमांड एंड सप्लाई का एक कॉन्सेप्ट है, वो एक अलहदा अपनी उसकी एक अहमियत है, लेकिन कस्टमर की नीड अपनी जगह पे. एक कस्टमर को टूथपेस्ट की जरूरत है, आप उसको पेप्सी की बोतल नहीं दे सकते, आप उसको बाकी चीजें नहीं दे सकते कि जी इससे भी कुली की जा सकती है और इससे भी दांत साफ किए जा सकते हैं और कोला से तो बड़े बड़े इंजन साफ हो जाते हैं, दांतों का तो मसला कोई नहीं, वगैरह वगैरह. सो यू नो, सो मल्टीपल एग्जांपल्स. सो नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करना, हेल्प करना, केयर करना, कस्टमर के प्रॉब्लम को सॉल्व करना, दैट इज सेलिंग. सो ये फलसफा होना चाहिए आपके माइंडसेट के अंदर, सो दैट यू कैन यू नो, तो फिर आप एनहांस कर सकते हैं चीजों को, फिर आप आगे बढ़ सकते हैं. इसी तरह से एक कस्टमर जो है वो एक ऐसा बंदा
है जिसको सर्व करना है। आप उसको बेच रहे हैं, एक्टिविटी बेचने की है, लेकिन आप उसको सर्व कर रहे हैं, आप सर्विस दे रहे हैं, सेटिस्फाइज नीड्स। इसके अलावा ये है कि आप लोगों को डॉलर साइन या पाक रुपी साइन में मत तोलें। सो ट्रीट द पीपल एज अ ह्यूमन बीइंग्स, जैसे उनकी नीड्स हैं, जरूरतें हैं, उनको पूरा किया जाए। रिलेशनशिप्स, कल्चर्स में उनकी इंपॉर्टेंस है। वन हैज टू बी कस्टमर ड्रिवन, नॉट द प्रोडक्ट ड्रिवन, कि मेरे पास प्रोडक्ट आ गई, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि इसकी किसी को जरूरत है या नहीं है, मैं इसको बेचना शुरू कर दूं तो मैं बड़ा सेल्स चैंपियन हूं। दैट इज नॉट द केस। प्लीज इस फिलॉसफी को अपने जहन से निकाल दीजिएगा। द ओनली फिलॉसफी फॉर अ सेल्स चैंपियन इज कि हमें कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करना है। हमने प्रोडक्ट ड्रिवन नहीं होना, हमने सोल्यूशन ओरिएंटेड होना है, हमने सर्विसेज देनी है, हमने कुछ और नहीं करना। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और सेल्स पर्सन जो हैं वो मौजूद हैं क्योंकि कस्टमर्स मौजूद हैं। ये वो फिलॉसफी है जिसके तहत हम बात करते हैं कि जी विन विन सिचुएशन क्रिएट हो। कमिटमेंट है, एक सेल्फ इंप्रूवमेंट की कमिटमेंट है कि जितना मैं लोगों से मिलूंगा, जितनी नीड्स एंड वांट्स देखूंगा, जितना निगोशिएट करूंगा, जितना लोगों के साथ पब्लिक डीलिंग में जाऊंगा, जितना कम्युनिकेशन स्किल का इस्तेमाल करूंगा, जितनी चीजें मैं करता चला जाऊंगा, मेरी सेल्फ इंप्रूवमेंट होगी। तो एक फिलॉसफी ये भी है कि मैं ये सारा काम तब करूंगा मेरी अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट भी हो रही होगी। इसके अलावा एक मुझे अपने लिए कोड ऑफ कंडक्ट बनाना है, एक एम्फसाइज करना उस कोड ऑफ कंडक्ट पे, जिसपे बेसिक आई हैव टू टेक केयर ऑफ द बेसिक द एथिक्स, आई हैव टू टेक केयर ऑफ द म्यूचुअल बेनिफिट्स, आई हैव टू टेक केयर the respect, the honesty. So these are the core philosophy points which should be in the heart and soul of a sales champion. This should be in the DNA of a sales champion, that we have to follow this philosophy. So if you guys have any we want to add some points in it, so please do add, so that we can gauge the level of understanding at the moment कि अभी तक हम जहां तक पहुंचे हैं, यहां तक हमारी ऑडियंस की जो अंडरस्टैंडिंग क्या है। आई जस्ट वांट टू गेज दैट, सो आई वुड रिक्वेस्ट प्लीज एक एक पॉइंट जरूर इसमें दे दें सो दैट वी कैन मूव अहेड, जस्ट टू गेज द अंडरस्टैंडिंग लेवल। सो प्लीज ऑडियंस इस पे पॉइंट्स हैं तो प्लीज जरूर दीजिएगा। प्लीज अपने पॉइंट्स लाजमी इसमें ऐड ऑन कर दें सो दैट हम फिर आगे बढ़ सकें। वी जस्ट वांट टू द गेज द नॉलेज। अगर आप पॉइंट्स नहीं देंगे देन वी विल स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस कि जी अब आप लोग बताएं कि पिछली स्लाइड में क्या था और आपके नजदीक क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, आपके नजदीक क्या फलसफा होना चाहिए फॉर अ सेल्स पर्सन। इफ यू हैव some definition of the selling with some different words, so please share कीजिए ताकि पूरे फोरम की जो अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज है उसको एनहांस किया जा सके, और विच इज आवर कोर पर्पस टुडे। जी तो guys, any points if you want to add, or we should move ahead please. Okay, so let's move with the point के yes or no के साथ थोड़ा सा हमें respond कर दें। Have you got the understanding of the philosophy behind the sales champion and the understanding of yes, boss, the basic we got definition? the understanding. We can Please बताइए। आप लोग या तो स्क्रीन पे वोट कर दें सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड के पीछे दो तीन जो हमने अभी तक मटेरियल अभी तक शेयर किया है उसकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर है। इफ आंसर इज यस, सो वी विल मूव अहेड विद द नेक्स्ट स्लाइड्स।
Yes, clear. So thank you so much. So I am receiving, the certain inputs and points. So I always welcome the points from the audience. So please अपने points लाजमी साथ at least अगर आप लोग verbally add in नहीं करना चाहते तो उसको text की सूरत में जरूर add in करते जाइए so that हमें भी रहनुमाई मिलती जाए और हम आगे बढ़ें. So let's move to the next step जिसमें हम बात करेंगे जी the selling activity का जो process flow है. हमने अभी तक जो so far we covered the definition under the head of the knowledge, the definition of the selling and the philosophy of a sales champion. So now moving forward, we are on the slide which have the knowledge with regards to the selling activity process flow. So the process flow is very simple जी. इसमें अगर हम बात करें so the first thing is the knowing the customer, second is identifying the need, third is the the matching the appropriate product, then the benefit selling, and then closing the deal. So here we what we will do is कि जब हम बात करते हैं कि ये जो पूरा प्रोसेस फ्लो है जिसके अंदर एक सेल्स एक्टिविटी कवर होती है कि आप एक कस्टमर को जानते हैं, उससे मिलते हैं, उसकी नीड्स आइडेंटिफाई करते हैं, and then you offer your product, and then you present the benefits of the product, and then you finally close it. So इस पूरी एक्टिविटी के अगर हम एक एक हिस्से को define each and every step of the activity. So knowing the customer is basically knowing your target market. ये आपका जो कस्टमर है that वो किस टारगेट मार्केट से उसका ताल्लुक है, आपकी टारगेट मार्केट क्या है, आपकी जो प्रोडक्ट है उसके लिए द काइंड ऑफ कस्टमर जो फॉर एग्जांपल आपकी टारगेट मार्केट है रिटेल, आपकी टारगेट मार्केट है होलसेल, आपकी टारगेट मार्केट है इंडिविजुअल कस्टमर्स, आपकी टारगेट मार्केट है डॉक्टर्स, आपकी टारगेट मार्केट है let's say the property dealer, आपकी टारगेट मार्केट है let's say lawyers. So one should know what the target market is जिसके लिए आपने एक certain product को डिजाइन किया. So अपनी टारगेट मार्केट का जानना, then important thing is कि उस टारगेट मार्केट की सेगमेंटेशन. अगर आपकी टारगेट मार्केट रिटेल है तो आपको पता होना चाहिए टॉप सेलिंग आउटलेट्स की कैटेगरी क्या है, सेकंड टियर की क्या है, थर्ड टियर की क्या है, फोर्थ की क्या है, उनके ऊपर आपकी विजिट फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, आपको उस कस्टमर की जो टॉप टियर का कस्टमर है, टॉप का होलसेलर है, टॉप का रिटेलर है, टॉप का लॉयर है, शहर का सबसे बड़ा डॉक्टर है, सो उसके पास टाइम की सूरत हाल क्या होगी, उसके इकोनॉमिकल बैकग्राउंड क्या होगा. सो फिर आप उस सेगमेंटेशन की मदद से आप लिंक करते हैं चीजों को अपने साथ. फिर आप ओवरऑल इकोनॉमिकल फैक्टर्स, आपकी प्रोडक्ट का वजन क्या है, उसकी प्राइस क्या है, उसकी चीजें क्या हैं, जो आपकी टारगेट मार्केट है वहां से क्या क्या पोटेंशियल चीजें सामने आ सकती हैं. सो अपने कस्टमर्स का एक कंप्लीट अहाता करना, उसको मुकम्मल अंदाज में जानना. सो दैट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ दैट प्रोसेस फ्लो फॉर अ सेलिंग एक्टिविटी. जब आप अपने कस्टमर को जानते हैं, अब नाउ यू हैव स्टार्टेड इंटरेक्टिंग विद हिम. अब आपने इंटरेक्ट किया है शायद 1-on-1, आपने इंटरेक्ट किया है थ्रू मीडिया, आपने इंटरेक्ट किया है थ्रू न्यूज़पेपर, आपने इंटरेक्ट किया है थ्रू सम डिस्प्ले, आपने इंटरेक्ट किया अपने के साथ कस्टमर के साथ थ्रू सम मर्चेंडाइजिंग, थ्रू सम ईमेल और व्हाटएवर. सो फिर उस जो इंटरेक्शन का आपका तरीकाकार है, द वे यू आर इंटरेक्टिंग विद योर कस्टमर, द वे यू आर नोइंग योर कस्टमर. So identifying the need and the rest of the steps that based on how you are pursuing with that. आपने जो need identify की, उसके लिए one should know, अगर आपका कस्टमर सामने नहीं है, so there is a marketing research report जो आपको बताएगी कि what is your customer and what are the needs of the customer. कुछ research हैं, कुछ surveys हैं. इसके लिए the important is the आर्ट ऑफ आस्किंग द क्वेश्चंस. आप अपने कस्टमर से जितने क्वेश्चंस करेंगे, जितने ओपन क्वेश्चंस करेंगे, अपनी इंफॉर्मेशन को जितना बढ़ाएंगे, उतना इट वुड बी इजियर फॉर यू टू आइडेंटिफाई द नीड. जितनी अच्छी आपकी लिस्टिंग स्किल होगी, जितना आपके अंदर पेशेंस के साथ आप सुनेंगे, जितना आप सुनेंगे और इसमें
I would like to add that it's not only listening through ear, it's listening by heart as well, कि आप दिल से सुने और उन बातों को सुनने की कोशिश करें जो शायद कस्टमर जुबान से अदा नहीं कर पा रहा। तो आपको अपने कस्टमर का एक जायजा भी बड़े अच्छे अंदाज में लेना है, सो दैट कि चेहरे के उतार चढ़ाव और उसके मूड्स के साथ भी आप चीजों को जज कर सकें और वो चीजें भी सुन सकें जो उसने जुबान से अदा नहीं की। सो लिसनिंग टू योर कस्टमर, आस्किंग द राइट क्वेश्चन टू फर्दर एक्सप्लोर एंड टू ओपन, ताकि वो जितना ज्यादा खुलेगा उतनी ज्यादा उसकी नीड्स एंड वांट्स को अंडरस्टैंड करना और डाउनलोड करना तमाम इंफॉर्मेशन को विल बी इजियर फॉर यू। और इसके लिए यू नीड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स एंड द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो आपका अपना नॉलेज बैंक जितना बेहतर होगा, आपकी अपनी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग जितना बेहतर होगा, और फिर अंडरस्टैंड करने की नीयत जितनी अच्छी होगी, सो ये आपको कंज्यूमर की जो नीड्स एंड वांट्स उसको आइडेंटिफाई करने में बहुत इजी होगा। आप एक शॉप पे गए, बड़ा नाराज कस्टमर था, डिस्प्ले नहीं करने देता, सो स्टार्ट लिसनिंग टू हिम, सवालात करना शुरू करें। तो आप पहला सवाल करेंगे, वो आपको कहेगा नहीं जी मैं तो आपकी प्रोडक्ट से राजी नहीं, मैं रखना ही नहीं चाहता अपनी दुकान पे। फिर आप क्वेश्चन करते हैं, फिर आप खुलते हैं, इवेंचुअली आपको ये पता चलता है कि वो शायद मर्चेंडाइजर के गलत जगह पोस्टर लगाने पे आपसे नाराज है, वो शायद आपके सेलमैन की दुकान पे आने जाने की टाइमिंग से नाराज है, वो शायद इस बात पे नाराज है कि वो एक कस्टमर डील कर रहा था एंड योर सेलमैन यू नो स्टार्ट आस्किंग हिम अबाउट द बिल, कि वो जी मेरे पैसे दो, मैंने जाना है, मैंने अगली दुकान भी करनी है। उसको शायद ये अंदाज पसंद नहीं आया। तो जितना आप बेहतरीन सवालात करके सिचुएशन को खोलेंगे तो एक नाराज कस्टमर का पूरा अहाता कर सकते हैं। इसी तरह से आप एक किसी पर्सनल उस पे जाते हैं, बैंकिंग सेक्टर में हैं आप, और एक कस्टमर से आपको एक बैंक अकाउंट चाहिए, सो आप उसकी नीड्स पहले ढूंढें कि क्या उसको करंट अकाउंट की जरूरत है, सेविंग अकाउंट की जरूरत है, उसको अकाउंट के साथ इजाफी चीजें होती हैं, इंश्योरेंस होती है और क्रेडिट कार्ड होता है, सो क्या उसको उसकी जरूरत है, क्या उसको एटीएम कार्ड की जरूरत है, या ही जस्ट वांट यू नो साइन ऑफ द चेक। सो तमाम चीजें जब तक आप सवालात नहीं करेंगे, पूछेंगे नहीं, और जब तक आप अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, दिल से लिसनिंग नहीं करेंगे और राइट क्वेश्चंस इन प्लेस नहीं होंगे, you will not be able to identify the need of your customer. Once you identify the need, so then you need to verify that you identified the right need, or still there is something else which you need to know, जिसका आपको जानना बड़ा जरूरी है। सो आप फिर कस्टमर बताते हैं कि based on the information you have given to me, so क्या यही वो चीज है जो आपको चाहिए, और उसके ऊपर फर्दर आप उससे मजीद इंटरेक्ट करते हैं और जो वेरीफाई कर लेते हैं कि जी नाउ यू नो द कंज्यूमर नीड। जब आपको नीड्स का पता चल गया तो फिर आप राइट प्रोडक्ट को ऑफर करते हैं, आप मैच करते हैं कि जी सर दिस इज योर नीड एंड दिस इज द प्रोडक्ट विच इज मैचिंग योर नीड्स। अब उसके लिए आपको अपनी प्रोडक्ट का नॉलेज होना बड़ा जरूरी है। सो द सेल्स पर्सन हु डोंट नो अबाउट हिज प्रोडक्ट, और उसके ऊपर अगर कंज्यूमर सवालात कर ले एंड इज नॉट एबल टू यू नो सेटिस्फाई हिम, तो यहाँ पे आपका सेलिंग एक्टिविटी प्रोसेस विल बी स्टॉपिंग। उसके बाद आप हेल्प करने की नियत करते हैं, आप एनालाइज करते हैं कि द solution you are proposing in the light of the need you have identified, क्या ये उसके लिए अप्रोप्रिएट है, क्या उसकी पॉकेट इजाजत देगी नहीं देगी, इसकी फोरकास्टिंग क्या है, ये कितना अर्सा उसके साथ चल जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद व्हेन यू आर प्रेजेंटिंग, सो आप ऑब्जर्वेशन में बड़े अच्छे होने चाहिए, आप क्विक फाइंडिंग्स ले लें, चेहरे के मूड्स उतार चढ़ाव देखते हुए कि क्या मेरी प्रोडक्ट जो कि मैं अब ऑफर कर रहा हूँ, क्या ये राइट वहां पे बैठ रही है उसकी नीड के साथ, और कंज्यूमर इज लाइकिंग इट और नॉट। एक चीज मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा कि बाज औकात कंज्यूमर को खुद मालूम नहीं होता कि उसकी नीड क्या है, वो रन ऑफ द मिल किसी और को देखते हुए किसी और प्रोडक्ट के पीछे भाग रहा होता है जो कि उसकी जरूरत नहीं होती। क्या फॉर एग्जाम्पल एक प्रोडक्ट है, लेट्स से एक कंज्यूमर है जिसने सिर्फ 2 नंबर ऐसे हैं जिन पे रोज कॉल्स करनी है, उसके अलावा उसने नॉर्मली नहीं करनी। उसको किसी ने कहा कि जी फलां कार्ड बड़ा सस्ता पड़ता है, उसने कहा जी मैं ये ले लेता हूँ।
जब आपने आइडेंटिफाई किया एंड यू कैम टू नो ओके फाइन, ऑल ही नीड इज अ पैकेज जिस पे 2 नंबर्स फ्री हों, रेस्ट उसकी जरूरत ही नहीं है, वो चाहे महंगा कार्ड भी हो, तो यू स्टार्ट यूटिलाइजिंग इट। सो कंज्यूमर की जो असल नीड थी वो 2 नंबर्स पे ज्यादा कॉल्स करनी थी, तो आपने एक ऐसा पैकेज सजेस्ट कर दिया जो कि उन 2 नंबर्स पे फ्री कॉल्स अलाउ करता है, बाकी बेशक महंगा हो जाए उससे फर्क नहीं पड़ता। आप ये तमाम चीजें खोल के उसके सामने रखते। कंज्यूमर शायद आपसे कुछ और मांग रहा था, वो कोई और पैकेज मांग रहा था, लेकिन आपने आइडेंटिफाई किया, आपने कहा सर व्हाट आई सजेस्ट, आपको इस प्रोडक्ट की जरूरत है, ईमानदारी से आप ये करें। सो अब उसके चेहरे के उतार चढ़ाव कैसे हैं, अच्छा वो थोड़ा सा सारे लाएगा, बात तो ठीक है। सो आपको पता चल जाएगा, उसके मुंह से ना भी निकले लेकिन उसका सर हिलाने का अंदाज आपको बता देगा। सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि आपकी जो ऑब्जर्वेशन है ये तय करेगी कि आप कितना इसके अंदर सक्सेसफुल रहे। देन जब आप एक चीज दिखा दी, आपने प्रोडक्ट मैच कर ली, तो फिर आप उसके बेनिफिट सेलिंग करते हैं, आप उसको प्रेजेंट करते हैं। मैं एग्जांपल दूंगा, मेरे कुछ दोस्त शायद एफएमसीजी से होंगे, आपने कहा कि जी डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना है, और अब आपने सेल करना है अपने डिस्ट्रीब्यूटर को कि वो डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करे। सो व्हाट ऑल यू नीड इज, अब इसकी बेनिफिट सेलिंग क्या है, आप एक वर्किंग करके जाएंगे कि लुक अगर हम अपने सेल्स पर्सन को ये दें, प्लस अगर हम अपनी राउट प्लानिंग यूं करें, डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर यूं का बनाएं कि लोगों के बैठने की जगह ठीक हो, उनको पीने का साफ पानी हो, सो वो मेंटली सेटिस्फाइड होंगे, उनका राउट जो है वो फ्यूल एफिशिएंट बना हुआ हो, और अगर हम ये तमाम चीजें इन प्लेस करते हैं और पीपल के ऊपर काम करते हैं लोगों पे, they will bring you the best sales, they will bring you the best coverage। and आज जो इन चीजों के ना होने से सेल्स लॉसेस हैं, आप इतना लॉस कर रहे हैं डेली, और इन चीजों के होने से जो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी लोगों की, आप इतना प्रॉफिट गेन करेंगे। सो आप एक बेनिफिट्स बनाते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करते हैं, सो ये बेनिफिट्स जो हैं वो इस तरह से आगे बढ़ते हैं और आप उसको सेल करते हैं। आप एक विन विन सिचुएशन क्रिएट करते हैं जिसपे आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपका जो बिजनेस है उसका भी जो मार्जिन और प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी इंश्योर रहे, और कंज्यूमर का एक जो मार्जिन एंड प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी इंश्योर रहे। और उसके बाद ये कि आप कोई क्वेरीज हैं, कोई सवालात हैं, सो वो आप एड्रेस करते हैं। दैट इज व्हाई नोइंग द कस्टमर, नोइंग योर प्रोडक्ट इज इम्पोर्टेंट, ताकि जो सवाल जवाब हैं वो किए जा सकें। एंड लास्टली जब ये तमाम चीजें तय हो जाती हैं तो फिर आप डील क्लोज करते हैं। एंड क्लोजिंग द डील इन अ वे कि आपने इतनी मेहनत की, पूरे तमाम 4 स्टेप्स पे आप लेके आए, और लास्टली जब आपने डील क्लोज की तो आपने इनपेशेंस हो गए, आपने जल्दबाजी कर दी, और वहां पे कुछ ऐसा हो गया कि वो तमाम चीजें रायगा चली गई और कंज्यूमर एंड में कहीं नाराज हो गया। सो वो फायदा नहीं होगा। सो क्लोजिंग द डील इज अ आर्ट जिसके अंदर ज्यादा पेशेंस चाहिए, जिसके अंदर एक रिफ्रेशर चाहिए तमाम चीजों का, और क्लोज करें इस अंदाज में क्लोज करें कि या तो वो डील वहां फाइनलाइज हो और उसके साथ साथ आपको अगली डील के लिए लीड मिलता है, और अगर वो डील वहां फाइनलाइज नहीं हुई तो एटलीस्ट एक टाइम फ्रेम सेट हो जाए कि जी इतने टाइम फ्रेम के अंदर हम इसको दोबारा देखेंगे। आप एक डोर जरूर खुला छोड़ के आ जाएं, सिलसिला मुनक़ता ना करके आए, और फिर इसको दोबारा नए सिरे से वापस जाके हिसाब लगाएं कि कहाँ क्या कमी रह गई, और उसको दूर करने के बाद फिर वापस आए। लास्ट स्लाइड्स में हम इसके ऊपर बात करेंगे हाउ पार्ट के ऊपर कि ये जो प्रोसेस फ्लो है बेटरमेंट का, इसको कैसे करना है। लेकिन विद दिस स्लाइड जो थोड़ी सी लेंथी है, मैं ये समझता हूँ कि इसका जो आउटकम है इस स्लाइड का जो भी हम सबके सामने है, वो है पूरी सेलिंग एक्टिविटी के प्रोसेस फ्लो को हिस्सों में तोड़ के देखना, हर हिस्से की एक ब्रीफ लेना, उस ब्रीफ के तहत अपने नॉलेज बैंक को इतना मजबूत और इतना ज्यादा बनाना, सो दैट वी कैन कम बैक और हम अपनी चीज को, अपनी सेलिंग एक्टिविटी प्रोसेस को सक्सेसफुली क्लोज कर सकें। यहां मैं एक सादे लम्हे का पॉज जरूर करूंगा जस्ट टू चेक कि इसकी अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को कैसी मिली। प्लीज अब जो है ना, अब आप देर ना कीजिएगा, अपनी इनपुट जरूर दें, सो दैट के एक
हमें भी आपकी तरफ से एक साइन मिले सो दैट हम इसको फिर मजीद अगली स्लाइड्स पे जो है चीजें रेस्ट ऑफ द थिंग्स जो हम एड्रेस कर सकें. सो आई नीड योर इनपुट एंड फीडबैक ओवर हियर. सेलिंग की डेफिनेशन, characteristics of the sales people, the philosophy, the knowledge, the paradigm shift, and the selling activity process flow. यहाँ तक अगर कोई ambiguity, किसी किस्म का क्वेश्चन हो, so please I would like के आप लोग यहाँ पे रेज करें और एक ताकि म्यूचुअल इंटरेस्ट पैदा हो. मैं नहीं चाहता कि मेरी ऑडियंस सो के चले और ना मैं चाहता हूँ कि मैं सो जाऊँ. सो आई वांट यू गाइस टू प्लीज इसके अंदर अपनी इनपुट दें. सजाद भाई आपकी तरफ से बड़ी अच्छी इनपुट्स आ रही हैं, प्लीज इसको कंटिन्यू करें. एंड आई वुड लव के रेस्ट ऑफ द माय ऑडियंस प्लीज आप लोग इसके अंदर अपनी इनपुट दें प्लीज. सर फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेल एक्सप्लेन्ड. जो पूरा प्रोसेस आपने समझाया जैसे बताया बहुत बेहतरीन तरीके से. और ये जो प्रोसेस है पूरा जो फ्लो है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इफ one does not know about the customer target market, then he cannot identify the need basically. और जब तक आप एक नीड को आइडेंटिफाई नहीं करते so you cannot basically offer them a proper product, appropriate product. ठीक है, मैं इसकी एक जो मुझे अंडरस्टैंडिंग आ रही है मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ. फॉर एग्जांपल जब हम जाते हैं मार्केट में किसी भी एक आउटलेट के साथ एक JBP जब हम साइन करते हैं सो बिकॉज हम करते क्या है हम उसको डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो डिफरेंट टाइप की JBP बनाती हैं और वो ऑफर करती हैं. फॉर एग्जांपल यूनिलीवर की मैं बात करूं सो यूनिलीवर का सारा जो टर्म्स एंड कंडीशन या जो स्ट्रक्चर होता है JBP का वो डिफरेंट होता है. अगर मैं कोलगेट की बात करूं उनका डिफरेंट होता है. सो उसके परसेंटेजेस भी हाई होते हैं. फॉर एग्जांपल कंपनी ने हमें कहा कि जी आपकी परसेंटेज है 5%, आपने ये JBP लॉक करनी है और ये सर्टेन KPIs हैं ये आपने सेट करनी है. अब जब हम उनके पास जाते हैं वो कहते हैं कि नहीं मुझे तो यूनिलीवर ये ऑफर कर रही है कोलगेट ये. सो हम उसको देखते ज़रूर हैं बट हम उसको अपने तरीके से हम उसको सेल करते हैं कि ठीक है वो इस तरह है बट इसमें आपको ये बेनिफिट्स हैं कि आप अगर ये हमसे लेंगे तो इस 5% के अंदर आपको ये मिलेगा. आप हमें यहाँ पे शेल्फ दे दें तो उससे होगा क्या हम मर्चेंडाइजिंग एक्टिविटी कराएंगे. उसके बाद आपको ये बेनिफिट होगा कि जो कंज्यूमर आएंगे हम जैसे हम कहते हैं कि जी हमें जो प्लेस चाहिए बिटवीन द आइज चाहिए, जो कैटेगरी है उसके सेंटर पे हमें चाहिए स्पेस. बिकॉज वहाँ पे जो कंज्यूमर आता है तो वो नॉर्मली स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द सेंटर. सो अगर आप वहाँ पे स्पेस देंगे और फिर आई कांटेक्ट या आई लेवल के ऊपर आप हमारे प्रोडक्ट को डिस्प्ले कराएंगे ठीक है, तो ये सारे बेनिफिट्स अगर हम उसको बताएंगे जिससे आपकी सेल बढ़ेगी तो एक तो आपको प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा मिलेंगे प्लस हम आपको इतनी ऑफर भी करेंगे कि इतना हम आपको परसेंटेज देंगे एट द एंड ऑफ द मंथ. इस तरीके से फिर आपने आगे जो इससे पहले जो स्लाइड आपने प्रेजेंट की थी उसमें एक आपने एक वर्ड यूज किया था विन विन एक्टिविटी. सो बेसिकली हमें वो भी क्रिएट करनी है कि एक विन विन सिचुएशन हो ताकि उसको भी बेनिफिट मिले और हमें भी बेनिफिट मिले. तो तब जाके अगर हम उसको कन्विंस कर पाते हैं उस ऑफर के ऊपर फिर जाके हम डील को क्लोज करेंगे. और ये तब होगा जब हम उनके बेनिफिट्स उनको बताएंगे कि आपको ये फायदे इस डील से होंगे, तब जाके वो कन्विंस होगा और डील हमारे साथ क्लोज करेगा. सो आई एम वेरी सेटिस्फाइड, आई एम वेरी हैप्पी कि मैं आपका सेशन अटेंड कर रहा हूँ. वेरी मच इंफॉर्मेशन वी आर गेटिंग और ये बहुत अच्छे तरीके से आपने अभी तक पूरा प्रोसेस राइट फ्रॉम द स्टार्ट अभी तक आपने पूरा बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया. सो वेरी वेल डन सर. So nice of you, Sajad bhai. Thank you so much. Very good addition from your side. Specifically जो आपने बात की कि when we go to that trade with certain offers, very rightly said. और वो हम भी यही चीज इंसिस्ट यहाँ पे कर रहे हैं कि एक शॉपकीपर के लिए एक यूनिलीवर का प्रोडक्ट रखना और उसकी जो रेंज है उसके बिजनेस के लिए कितना बड़ा इजाफा है. और फिर जब उसकी वो रेंज ऑर्गेनाइजेशन एक सर्टेन परसेंटेज के मार्जिन के साथ बिकवाना चाह रही है, डिस्प्ले करवाना चाह रही है, सो उसका एक म्यूचुअल बेनिफिट है कि ऑर्गेनाइजेशन का ब्रांड बिक रहा है लेकिन एट द सेम टाइम उस डिस्प्ले के साथ उस दुकान की लुक में कितना फर्क पड़ रहा है. फिर जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन किसी शॉप को ब्रांड करती है तो ये मोर लग जाती है कि जी ये एक नंबर होगा. सो वो जो एक होता है कि जी इस शॉप पे एक नंबर प्रोडक्ट्स बिकती हैं, चीजें होती हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन का जितना डिस्प्ले और ब्रांडिंग किसी शॉप के ऊपर होगी उतना ज्यादा लोगों को यकीन होगा कि जी ये बिल्कुल एक नंबर है, कोई मसला नहीं है. सो
इसके अलावा ये बिजनेस एनहांसमेंट के लिए भी बड़ा अच्छा है। और ये बिजनेस टू बिजनेस जब हम बात कर रहे होते हैं, क्योंकि आगे जब हम इसके सेलिंग के मेथड और चीज़ों पे आएंगे, सो आपका कंज्यूमर आपका एक बिजनेस एंटिटी भी हो सकती है, एक दुकानदार भी आपका कंज्यूमर है, डायरेक्ट कस्टमर जो एंड यूजर है वो भी आपका कंज्यूमर है। सो ये मुख्तलिफ वो है जो कि सेलिंग प्रोसेस के अंदर ये तमाम लोग एक शामिल हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर हेल्दी इनपुट सुजात भाई। सो और मेरा कोई पार्टिसिपेंट अगर इसके अंदर कोई ऐड करना चाहें सो ऑलवेज वेलकम। सो अगर पॉइंट्स हैं तो प्लीज दे दीजिए so that we can move to the next slides. Thank you very much. So there was certain, मुवासलाती राब्ता थोड़ा सा मुनक़ता हुआ था. So we are back. So moving forward, जी जब हमने when recently we have discussed and studied the process of the selling activity. So now we came to the types and the methods of the selling. So there are two types: direct selling and indirect selling. So very easy, very quick. Direct interaction हो रहा है. आप इन पर्सन अपनी चीज सेल कर रहे हैं. इनडायरेक्ट सेलिंग ये है कि थ्रू एडवर्टाइजिंग सेलिंग हो रही है, थ्रू प्रमोशंस, थ्रू डिस्प्लेज, थ्रू द साइन बोर्ड्स एंड द स्टफ. सो उसके हवाले से जो मेथड्स इस्तेमाल हो रहे हैं आजकल, सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मेथड एट द मोमेंट. पर्सनल सेलिंग है जहाँ पे हमारा जो एक डायरेक्ट इंटरेक्शन है विद द कंज्यूमर. देन देयर इज अ बिजनेस टू बिजनेस जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर को सेल कर रही है. डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो रिटेल को या ट्रेड होलसेल रिटेल वहाँ पे सेल कर रहा है और फिर वो आगे आपके एंड यूजर के साथ उनका इंटरेक्शन है. सो इट्स अ बिजनेस टू बिजनेस जहाँ पे हम कंपनी एंड द डिस्ट्रीब्यूटर एंड द शॉपकीपर. सो B2B. सो यहाँ पे भी हमें बेसिक जो बुनियादी चीजें सेलिंग के हवाले से पैरामीटर्स वही वाले हमें चूज करने पड़ते हैं. देन देयर इज अ टेली मार्केटिंग जिसपे आपको टेलीफोन के ऊपर डिफरेंट ऑफर्स या चीजें बताई जाती हैं. सो टेली मार्केटर्स भी यही कर रहे होते हैं. वो क्या करते हैं कि वो आपका एक डेटा लेते हैं, उस डेटा की पूरी रिसर्च होती है, फिर वो सेगमेंटेशन करते हैं और फिर वो चूज करते हैं कि इस इनकम ग्रुप में यहाँ हमने कॉल्स करनी है, यहाँ पे देयर मस्ट बी अ नीड और डिजायर फॉर आवर प्रोडक्ट. So they call directly to the consumer. So telemarketing एक method है selling का. और आजकल especially the COVID period के अंदर online के ऊपर बहुत ज़्यादा काम हुआ है. So there are multiple web platforms हैं, Daraz है, like there are so many, you name it. और मतलब the full world is full of now those platforms. E-commerce के जरिए है जिसके अंदर आप online ordering में जाते हैं, चीज़ें करते हैं. सो वो भी उनका तरीका ये है कि वो शायद जुबान से नहीं बता रहे क्योंकि वो पर्सनली आपके साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहे. सो वो क्या कर रहे होते हैं कि दे केम अप विद दैट प्लेटफॉर्म. उस प्लेटफॉर्म पे वो उन्होंने कंज्यूमर्स की सेगमेंटेशन की हुई है और हर कंज्यूमर के लिए उन्होंने डिफरेंट रेंज ऑफ द प्रोडक्ट उसमें रखी हुई है कि किस कंज्यूमर को क्या जरूरत है. आप नेट सर्फिंग और सर्च के जरिए जाके वहां पे बात करते हैं. फॉर एग्जांपल
आप सर्च करते हैं बहुत ज़्यादा, लेट्स से आपको अपनी गाड़ी या बाइक के लिए टायर्स चाहिए, सो आप टायर्स बहुत ज़्यादा सर्च किए आपने, तो नेक्स्ट टाइम जैसे आप गूगल पे जाएंगे तो आपको जो सजेस्टेड वेबसाइट्स में बहुत सारी टायर और पंक्चर और इस रिलेटेड चीज़ें बहुत सारी आपको सजेस्ट हो जाती हैं। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर कंज्यूमर की नीड्स एंड वांट्स को इलेक्ट्रॉनिकली मेजर किया जा रहा होता है बेस्ड ऑन योर सर्च क्राइटेरिया कि आप सर्च क्या करते हैं। फॉर एग्जांपल आपको एक प्रोडक्ट चाहिए थी, आपको लेट्स से एक आपको पेन चाहिए था अच्छा लिखने के लिए, और आपने दराज पे भी उसको सर्च किया, आपने 2-3 और वेबसाइट पे उसको सर्च कर लिया। सो नेक्स्ट टाइम क्या होगा कि जब आप अपने लॉगिन के साथ वहां पे जाएंगे तो आपकी सर्च हिस्ट्री में से वो उठाएंगे कि यार इस बंदे को पेन चाहिए था लास्ट टाइम, सो दे विल कम अप विद सर्टेन ऑफर्स कि जी डू यू नो फलां पेन के ऊपर ये ऑफर है, फलां पेन के ऊपर ये ऑफर है। सो वो जो ऑनलाइन का एक प्लेटफॉर्म है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट विद रिगार्ड्स टू द सेलिंग। सो ये कुछ मेथड्स हैं जो आजकल सेलिंग के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। हमारा चूंकि कॉमन मेथड इज B2B एंड पर्सनल सेलिंग एट द मोमेंट, तो हमारी ज्यादा चीजें उससे रिलेटेड कवर अप हो रही हैं। मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो अभी तक जब हम थोड़ा सा रीकैप अगर करते हैं, सो इफ वी रीकैप, सो हमने एक सेल्स पर्सन के एट्रीब्यूट्स को देखा, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा, हमने द फिलॉसफी बिहाइंड द सीन देखा, फिर हमने तय किया कि जो सेल्स पर्सन है उसके अंदर क्या 2 चीजें होनी चाहिए। तो हमने कहा जी एटीट्यूड एंड द सेकंड वन इज द नॉलेज। एटीट्यूड के अंदर हमने कहा कि कैन डू होना चाहिए, पैराडाइम शिफ्ट होना चाहिए, सो दैट कि वो एक राइट एटीट्यूड के साथ मार्केट में आए, क्योंकि एटीट्यूड उसको मोटिवेशन देगा, उसको ड्राइव देगा, उसको पावर देगा। सो आपके पास ड्राइव है, मोटिवेशन है, पावर है, लेकिन अब आपको राइट नॉलेज भी चाहिए। तो जब आप राइट नॉलेज पे आए तो आपने कहा कि जी चूंकि हम सेलिंग स्किल्स की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले सेलिंग की डेफिनेशन पे आ गए। तो हमने सेलिंग की डेफिनेशन को पढ़ लिया। सेलिंग की डेफिनेशन में हमने सीखा कि जी कंज्यूमर की नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करना, सो दैट इज द सेलिंग। वो एक्टिविटी क्या है, उसका प्रोसेस क्या होता है। तो हमने कहा कि जी नोइंग योर कंज्यूमर, कंज्यूमर के पास हमने फिर कहा कि अच्छा जी आपका प्रोडक्ट नॉलेज होना चाहिए, कंज्यूमर की नीड को आइडेंटिफाई करें, राइट प्रोडक्ट को सजेस्ट करें, जो आपने सजेस्ट प्रोडक्ट की है उसकी बेनिफिट सेलिंग करें, और उसके बाद एक अच्छा कर्टियस क्लोज करें ताकि आने वाले वक्त में भी आपका उस कंज्यूमर के साथ इंटरेक्शन बेहतरीन रहे। हमने फलसफे को समझा कि फिलॉसफी क्या है कि कंज्यूमर जो है उसकी नीड्स एंड वांट्स आर इम्पोर्टेंट। कंज्यूमर को पैसा कमाने की गर्ज से मत देखें, सिर्फ कंज्यूमर को एज अ ह्यूमन बीइंग देखें, एथिक्स को देखें, कल्चर को देखें। एक अच्छी रिप्यूट एक सेल्स पर्सन की होनी चाहिए, उसको क्रिएट करें, नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करें इन अ वे। उसके बाद हमने कहा कि अच्छा इस प्रोसेस के बाद वो क्या क्या चीजें हैं जो कि एक मेथड्स क्या हैं, किस किस अंदाज में सेल किया जा सकता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेलिंग क्या है। इनडायरेक्ट सेलिंग एक बहुत बड़ा चैप्टर है, इसके ऊपर फ्यूचर में इंशाल्लाह हमारा इंटरेक्शन रहेगा। सो वी कैन टॉक अ लॉट के मर्चेंडाइजिंग के थ्रू और मर्चेंडाइजिंग के फंडामेंटल्स क्या हैं। सो इट्स अ कंप्लीट साइंस एंड कंप्लीट नॉलेज बैंक फॉर इट। सो उसके थ्रू कैसे सेल किया जा सकता है। ऑनलाइन जो सेलिंग है आजकल जो चल रहा है वेब बेस्ड, जो ई कॉमर्स के हवाले से इट्स अ कंप्लीट, ये भी पूरी इस पे किताबें लिखी जा सकती हैं। सो इसको भी किसी अलग सेशन में एड्रेस किया जा सकता है। जब हमने इस तमाम नॉलेज ले लिया, तमाम चीजें आई, तो हमने कहा कि अच्छा यार क्या रिवार्ड्स और क्या चैलेंजेस हैं। अगर मैंने प्रोफेशन चूज किया है, सो आई वांट टू बी अ सेल्स चैंपियन, सो व्हाट आर द रिवार्ड्स, व्हाट आर द चैलेंजेस जो कि मैं इस पे आगे बढ़ सकता हूँ। सो एक सेल्स पर्सन, उसका एक फ्रीडम है, ही इज हिज ओन बॉस, वो अपना बॉस खुद है। इस सेल्स के प्रोफेशन में जॉब्स की वैरायटी है, चैलेंजेस हैं, टेंजेबल एक्सप्लिशमेंट्स हैं इन अ वे कि बड़ा सीधा सीधा हर चीज बड़ी ब्लैक एंड व्हाइट में क्लियर होती है कि जी ये अचीवमेंट है, ये चीज खत्म हुई, ये नहीं हो सकी, ये हो गई। फाइनेंशियल कंपनसेशंस, कमीशंस, पर्क्स, बेनिफिट्स अच्छे होते हैं सेल्स जॉब के, एडवांसमेंट की अपॉर्चुनिटीज अच्छी होती हैं, और हमेशा से मुमताज नजर आते हैं पूरी ऑर्गेनाइजेशन में
सेल्स के लोग, क्योंकि ये बैकबोन है, ये बिजनेस को चला रहे होते हैं। देन द पर्सनल रिलेशनशिप्स आप बड़े अच्छे कायम कर सकते हैं मार्केट में। जिन जिन सेल्स के लोगों ने जिन जिन मार्केट में परफॉर्म किया, वहां पर उन्होंने बड़े अच्छे रिलेशनशिप कमाए हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ, दुकानों के साथ, कंज्यूमर्स के साथ। डॉक्टर्स हैं तो उन्होंने कंपनीज जो हैं, डिफरेंट मेडिसिन कंपनीज, सो यू नो, सो दैट रिलेशनशिप काउंट्स अ लॉट। फिर उसके बाद ये कि जब आप किसी को ईमानदाराना अंदाज में सही प्रोफेशनल बन के उसकी नीड एंड वांट को प्रॉपरली गेज करके उसका हल देते हैं, उसको आप चीज पेश करते हैं उसके सामने, ये जो एक दूसरे को हेल्प आउट करने की जो सेटिस्फेक्शन है, ये जो आपका दिल मुतमईन होता है, ये इनफैक्ट इट्स अ बहुत बड़ा रिवार्ड है। ये अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ा इनाम है। फिर अपने कंज्यूमर्स को खुश करना, कस्टमर्स को देखना। वो कहते हैं कि वो पंजाबी में कहते हैं जो इश्क नल चटियां या गुलाब के साथ कांटे होते हैं। सो रिवार्ड के साथ देयर आर सर्टेन चैलेंजेस। सो फिजिकली एग्जॉस्ट हो जाते हैं, लॉन्ग आवर्स काम होता है, सुबह आने का टाइम है जी, जाने का टाइम नहीं है। सो सेल्स के लोगों के बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं और डिप्रेसिंग होता है। बाज़ औक़ात आपके प्लान्स रिजेक्ट हो जाते हैं, बाज़ औक़ात आपकी एफर्ट्स रिजेक्ट हो जाती हैं, बाज़ औक़ात आप जिस तरह से करना चाह रहे होते हैं वैसा आपको मिल नहीं रहा होता मार्केट से, कंप्लेंट्स आ रही होती हैं, एक स्ट्रेस का एलिमेंट होता है, टारगेट फंस गया, फलां हो गया। सो ये बहुत सारे चैलेंजेस भी इसके साथ हैं। सो अल्लाह ताला ने बड़ा राइट बैलेंस किया है इसको, जहाँ पे इसके रिवार्ड्स बहुत अच्छे हैं वहां पे इसके चैलेंजेस भी हैं। अब इन चैलेंजेस को जब आप टर्न करते हैं टुवर्ड्स द रिवार्ड्स, मैं समझता हूँ कि जो क्वालिटी है वो ये है, जो हासिल असूल है वो ये है कि एक बंदा वो होगा जो इन तमाम चैलेंजेस को देख के इस प्रोफेशन से पीछे हट जाता है। वो अपने बच्चों को भी नहीं आने देता इस प्रोफेशन में। वो सेल्स में नहीं जाना, वो फाइनेंस में चले जाना, मार्केटिंग में चले जाना, बाकी चीजें देखना, लेकिन सेल्स में नहीं आना। लोग इस चैलेंजेस को एक राइट नॉलेज बेस चाहिए, जिसमें से कुछ हिस्सा हमने पहले कवर किया पिछली स्लाइड्स में, और इन चैलेंजेस पे ओवरकम करने के लिए एक अच्छी प्लानिंग की जरूरत है, एक अच्छा मॉडल अडॉप्ट करने की जरूरत है, ताकि हम आगे बढ़ते चले जाएं, वक्त का पहिया चलता चला जाए और चैलेंजेस को हम कम करते चले जाएं, रिवार्ड्स को बतदरीज बेहतर करते चले जाएं। ये पैराडाइम शिफ्ट होना चाहिए। वो जी ये चैलेंजेस तो नहीं खत्म होते, अब ये पैराडाइम शिफ्ट नहीं हो रहा। पैराडाइम शिफ्ट तब होगा जब हम ये बिलीव कर लेंगे बाय हार्ट कि ये जो चैलेंजेस हैं इनकी रेमेडी मौजूद है। अल्लाह ताला ने मर्ज बाद में पैदा किया, उसकी दवा पहले दी। अल्लाह ताला ने परेशानी बाद में दी है, उसका हल पहले दे दिए। और मैं इसको खैर उस दूसरी साइड पे ले जाना नहीं चाहता, लेकिन एक पॉइंट में जरूर मेरे जहन में आया, आई वुड लव टू ऐड दैट पॉइंट। चैलेंजेस को सामने रखते हुए, खासतौर पे सेल्स के लोगों के, मैं भी सेल्स बैकग्राउंड से हूं, सो मुझे पता है कि द लेवल ऑफ स्ट्रेस जब आता है सेल्स के बंदे के ऊपर तो बड़ा शदीद आता है। सो मैं ये कहना चाहूंगा कि अल्लाह ताला जिसकी हाकमियत तमाम दुनियाओं पर, तमाम कहकशाओं पर और तमाम चीजों पर, उससे बढ़ के कोई नहीं। इतनी बड़ी हस्ती, उसका कोई भी बात एक दफा कह देना काफी है। इस पे आप सबका बिलीव होना चाहिए कि इतनी बड़ी हस्ती का किसी एक बात का एक दफा कह देना बहुत है, लेकिन एक ही जगह पे, एक ही वक्त में, एक ही आयत में अल्लाह ताला अगर किसी बात को 2 दफा कहता है तो वो 2 दफा वाली बात का एक बड़ा असर है, बड़ा वजन है। और वो कहता है इन्ना माल उसरी युस्रन फइन्ना माल उसरी युस्रन। 2 दफा कहता है अल्लाह ताला, इसको 2 दफा कहता है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है, हर मुश्किल के बाद आसानी। इतनी बड़ी हस्ती का एक दफा कह देना बहुत था, लेकिन इतनी बड़ी हस्ती ने अगर एक चीज को 2 दफा कहा, सो दिस मीन्स अ लॉट। इट मीन्स कि इसकी बहुत बड़ी अफादियत, बहुत बड़ी सच्चाई, बहुत बड़ी हैसियत है। हमें दिल से इसको तस्लीम करना चाहिए। जितने चैलेंजेस, द चैलेंजेस a sales guy, a sales champion is facing, the right motivation, the right planning can turn those challenges into the rewards. इस पहिए को बेहतर अंदाज में ड्राइव करना बड़ा जरूरी है। एक रात में चीजें इंप्रूव नहीं होती, लेकिन इसको करना कैसे है,
वन हैज टू अडॉप्ट द राइट मॉडल। आपके टारगेट पास में आपकी चीजें हो रही हैं, मामलात नहीं आगे चल रहे, चैलेंजेस हैं, स्ट्रेस है, मेंटली डिप्रेशन है, फाइन। जब भी व्हेन यू आर इन अ प्रोफेशन जिसके अंदर रिवार्ड्स के साथ ये चीजें बैलेंस हो रही हैं, ये चीजें हैं, सो इसके हल भी अल्लाह ताला ने दिए हैं और इंसानी अकल को अल्लाह ताला ने कहा है कि वो अपने रास्ते ढूंढे और आगे से आगे एक्सप्लोर करे, सो दैट यू नो वी कैन ओवरकम ऑल दीज थिंग्स। सो नेक्स्ट स्लाइड पे आप देखेंगे व्हाट शुड बी द राइट मॉडल जिसको अडॉप्ट करके वी कैन यू नो अपने एक सर्कल के अंदर, अपने सेल्स प्रोफेशन के अंदर हम आसानियां पैदा कर सकें। So the model to follow is a BML model. BML model जो है, that is basically build, measure and learn. So building something, आपने कुछ प्लान किया, आपने कहा कि जी मैंने राउट प्लान किया, मैंने यूं जाके काम करना। आपने कहा मैंने डिस्ट्रीब्यूटर से बात करनी है, मैंने यूं करना। आपने कहा मैंने अपनी बैंकिंग प्रोडक्ट सेल करनी है, मैंने यूं करना। आप अपना एक प्लान करते हैं, उसको आप पूरे को बिल्ड के सेक्शन में देखते हैं। उस बिल्ड के सेक्शन में आपने अपना प्लान डाला एंड देन यू स्टार्ट मूविंग। आपने उस प्लान को जाके एग्जीक्यूट किया और उस एग्जीक्यूशन के अंदर आपने उसको मेजर करना शुरू कर दिया कि मेरी कौन सी चीजें सही काम की, कौन सी नहीं की। आपने चीज बनाई, आपने उसको एग्जीक्यूट किया और उसको मेजर करना शुरू कर दिया। वो पूरी एग्जीक्यूशन से गुजरा, आपने एक राउट प्लान बनाया था, आपने चीजें बनाई थी, आपने एक ROI मॉडल बनाया था, आपने एक JBP साइन किया था, ज्वाइंट बिजनेस प्लान बनाया था किसी के साथ। उसके अंदर क्या सही है क्या नहीं हुआ आपने मेजर किया। उस मेजर करने के बाद कुछ लर्निंग्स आई, आपने कहा ये 4 पॉइंट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इन 4 पॉइंट्स को मैं जरूर देखूंगा। उन 4 पॉइंट्स को जो निकले, दैट इज योर लर्न सेक्शन। उन 4 पॉइंट्स को आपने दोबारा बिल्ड में डाला और अब आप जो प्लान कर रहे हैं, अब आपने उन 4 पॉइंट्स को मलूज़े खातिर रखा, दोबारा मेजर में लेके आए, अगली दफा रूट विजिट किया, चीजें की, फिर मेजर किया कि क्या है क्या नहीं। आप एक सेलमैन के साथ एक रूट पे हैं और आप उस सेलमैन को सिखाना चाह रहे हैं, तो आपने पहले उस रूट की सर्टेन चीजें उठाई, मेजर किया, कुछ लर्निंग्स निकाली कि यार मेरे हिसाब से पूरे दिन की लर्निंग ये है कि हमें फलां फलां दुकान पे टाइम ज्यादा देना चाहिए, फलां दुकानदार से यूं नहीं यूं बात करनी चाहिए थी, फलां काम हमें यूं नहीं यूं करना चाहिए था। आपने दोबारा बिल्ड में डाला, नेक्स्ट टाइम फिर उसको मेजर किया। अब आपकी लर्निंग्स पहले 4 निकली थी, तो अब शायद 3 निकलेंगी। फिर आपने बिल्ड किया, फिर मेजर किया, लर्निंग ली, नया बिल्ड किया, मेजर किया, लर्निंग ली, एंड दिस प्रोसेस फ्लो गोज ऑन। ये चलता चला जाता है पहिया, और आपका ये पहिया आपको परफेक्शन की तरफ लेके जा रहा है। ये वो BML मॉडल है जिसको अडॉप्ट करने से आप अपना स्ट्रेस, अपनी चीजें, तो वो क्यों आ रहा है, क्या वजह हुई, उस वजह को अपने प्लान में डालें, उस प्लान को एग्जीक्यूट करें, उसको मेजर करें, उससे लर्निंग लें, जो चीजें निकलती हैं फिर डालें, एंड एक वक्त आएगा आहिस्ता आहिस्ता कि वो जो हर मुश्किल के बाद एक आसानी आएगी, फिर दूसरी आसानी आएगी, फिर तीसरी, और आहिस्ता आहिस्ता आप अपने मामलात को बेहतर करते चले। फिर कोई नया मार्केट का चैलेंज आ जाए, उस चैलेंज को फिर आप डालें, मेजर करें, उसकी लर्निंग लें, उसकी मुनासबत से बिल्डिंग करें। अब ये जो पूरा BML मॉडल है, बिल्ड, मेजर एंड लर्न वाला, अब इस मॉडल को आप उठा के ले जाएं, पूरा वो जो सेलिंग एक्टिविटी का सेल्स फ्लो है कि कहाँ क्या चीज चाहिए होती है, अगर आपने राउट विजिट करना है, अगर आपने मार्केट में जाना है, अगर आपने चीजों को देखना है, अगर आपने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ JBP बनाना है, आपने कुछ और चीजें करनी है, हाउ यू विल बी डूइंग इट। सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। इसी BML मॉडल को ज़हन में रखिएगा, और ज़हन में रखते हुए अब आपने अगली स्लाइड पे फोकस करना है। दिस विल गिव यू द राइट प्लेटफॉर्म एंड द राइट लर्निंग। ये हमारी, अब हम ट्रेनिंग के एंड मॉड्यूल में है, और मैं चाहूंगा कि आप लोग इसको जरा, ये हासिल रसूल है, वो होता है ना, वो हासिल नज़म एक शेर होता है आखिरी, जिसके अंदर पूरा उसकी एक जान होती है। सो इन 2 स्लाइड्स में पूरा जो हमने अभी तक नॉलेज शेयरिंग की है एक दूसरे के साथ, इस पूरी की जान है इसमें, और इससे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर
कि आपका जो मॉड्यूल चलता है कि आपका एक नॉलेज था कंज्यूमर के हिसाब से, राउट प्लान के हिसाब से, कवरेज स्ट्रेटजी के हिसाब से, आपका जो पूरा वो था वो आगे बढ़ा तो एक डाटा एनालिसिस आता है। आप कुछ डाटा एनालाइज करते हैं, उस डाटा एनालिसिस से आप कुछ एक्शनेबल इनसाइट्स लेते हैं, उन एक्शनेबल इनसाइट्स को टेक्निकल नॉलेज के साथ मिलाते हैं, क्योंकि आप जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, आप जो सेलिंग की जो टेक्निक्स जो इस्तेमाल कर रहे हैं, आप जो टेक्निकल नॉलेज जो भी आपके पास है उसके साथ आप अपनी एक्शनेबल इनसाइट्स को मैच करते हैं, और फिर उसके बाद आप वो ले जाते हैं आगे, और कंज्यूमर के साथ जब इंटरेक्ट करते हैं तो निगोशिएशन और बेनिफिट सेलिंग का प्रोसेस आ जाता है। आप उसमें से गुजरते हैं और आप फिर अपने कंज्यूमर को, अपने सेलमैन को ये निगोशिएट कर लेते हैं, अपने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ ये बेनिफिट सेलिंग कर लेते हैं कि वो एग्जीक्यूशन एक्सीलेंस की तरफ जाए, आप वो अपने लड़कों को रूट पे भेजे और मैक्सिमम सेल्स कवर करवा के दें आपको, वो आप करते हैं। सो उस एग्जीक्यूशन एक्सीलेंस के बाद आपके पास कुछ राइट फाइंडिंग्स आती हैं, कुछ अचीवमेंट्स आती हैं, अचीवमेंट के साथ कुछ फाइंडिंग्स भी आती हैं। ये वो फाइंडिंग्स हैं जो लर्निंग फेज की हैं, और वो जो आपका है टेक्निकल नॉलेज जो निगोशिएट किया आपने अपने कस्टमर के साथ, फिर आपने एग्जीक्यूट अच्छे से किया, ये सारा वो है जो कि एग्जीक्यूशन भी है और मेजरिंग भी है। और जो लर्निंग है वो अचीवमेंट और की फाइंडिंग जो लास्ट में आई, आपने उससे कुछ लर्निंग ली, दोबारा उसको नॉलेज वाले खाने में डाला और नए सिरे से आपने कुछ चीजें बनाई, पिछली लर्निंग को भी मद्देनजर रखा, नया डाटा एनालाइज किया, नए सिरे से आए, और इस तरह से आप अपने राउट्स को, अपनी टेरिटरीज को, अपने एरियाज को, अपनी जो बिजनेस, आपकी जो जुरिस्डिक्शंस हैं उनको आप इस प्रोसेस फ्लो के जरिए इंप्रूव कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा और ब्रीफ देख लेते हैं लास्ट स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा प्लीज। सो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसके अंदर कुछ चीजें डाल दी सो दैट कि जब हम नॉलेज की बात करते हैं तो आपका प्रोडक्ट नॉलेज, आपका बिजनेस नॉलेज, आपके कंज्यूमर के हवाले से नॉलेज, आपकी ये तमाम चीजें जो है वो आपके पास आई। आपने इन चीजों को लेके आप आगे बढ़े, आपने अपना देखा कि जी मेरे टारगेट्स क्या हैं, आपने कुछ डाटा एनालाइज किया, केपीआईज क्या हैं, मेरा प्राइमरी सेकेंडरी पिछला रिकॉर्ड क्या था, अगला क्या है, बेस्ड ऑन दिस डेटा एनालिसिस व्हाट शुड बी द राइट टारगेट सेटिंग, आपने वो की। आप फिर और आगे बढ़े, आपने कहा कि यार इस पूरे से जो नॉलेज था और जो मेरा डाटा एनालिसिस था, इससे कुछ ऑब्जेक्टिविटी निकल के आई और कुछ क्लैरिटीज निकल के आई ऑन माय ऑब्जेक्टिव्स, प्लस कुछ की फाइंडिंग्स निकली डाटा एनालिसिस से कि अच्छा फलां जो दुकानें हैं वो तो माल नहीं ले रही, उन पे ज्यादा जोर देने की जरूरत है। फलां जो सेलमैन है उसकी प्रोडक्टिविटी कम है, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की जरूरत है। सो आपने कुछ चीजें निकाल ली कि जिस पे आपको कुछ एक्शंस करने हैं, उन एक्शंस के अगेंस्ट आपने कुछ इनिशियल प्लानिंग कर ली। फिर आपने कहा कि अच्छा जी जो मेरे पास टेक्निकल नॉलेज है कि जो भी मेरे पास सेल सिस्टम है जिसके तहत मैं काम करता हूँ वो क्या है, वो सॉफ्टवेयर क्या है, इस सारी जो चीजें हैं केपीआई वगैरह इनको मैं उसके साथ कैसे मैच करूं। फिर उसके बाद व्हाट शुड बी द राइट राउट प्लान जिसपे फ्यूल एफिशिएंसी भी आए और चीजें भी बेहतर हो, ठीक है। फिर उसके बाद ये कि जो मैं को क्या नंबर अचीव करूं जो मेरी फलां केपीआई के साथ मैच करूं। फॉर एग्जांपल कि अगर 80 दुकानें प्रोडक्टिव होती हैं और एक्स नंबर ऑफ वॉल्यूम देती हैं, और अगर 85 दुकानें प्रोडक्टिव करें तो वॉल्यूम में क्या एडिशन होगा। इतनी दुकानें जो आउट ऑफ स्टॉक थी उनका अगर दोबारा से हिट किया जाए और वहां पे अगर हम एक मिनिमम रिजर्व का वो बना लें और सेलमैन वो दुकानें करना शुरू हो जाए तो ये एक इजाफी सेल होगी। तो आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर को भी कन्विंस कर सकते हैं कि बाय डूइंग दिस एक्स्ट्रा एफर्ट इतना बिजनेस एडिशनल आएगा तुम्हारे पास, लेकिन अगर तुम इतनी प्रोडक्टिविटी लॉस करोगे तो इतना बिजनेस जो तुम्हें मिलना था अब वो नहीं मिलेगा। सो दिस इज योर लॉस। सो कुछ टेक्निकल नॉलेज है राइट प्लानिंग के हवाले से, कवरेज स्ट्रेटजीज के हवाले से। सो इसके ऊपर एक सेपरेट चैप्टर है, ये पूरा एक समझ लें पूरा मॉड्यूल है ट्रेनिंग का कि आप इफेक्टिव राउट प्लानिंग या इफेक्टिव कवरेज मॉडल्स राउट टू मार्केट कैसे बना सकते हैं। सो उसका एक बेसिक टेक्निकल नो हाउ कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आपको क्या गाइडलाइंस दी हुई हैं, उनकी रोशनी में उसको आपने लेकर के चलना है। फिर उसके बाद
आप जाते हैं तो आप फिर ऑब्जेक्टिव अलाइन करते हैं। आप डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बात कर रहे हैं, आप दुकानदार के साथ बात कर रहे हैं, तो आप दुकानदार को, डिस्ट्रीब्यूटर को बताते हैं, लोग आपका ऑब्जेक्टिव है ज्यादा मार्जिन कमाना, मेरा ऑब्जेक्टिव है ज्यादा सेल करना आपको। सो अगर मैं आपको ज्यादा सेल करूंगा और आप भी आगे इसको बढ़ाएंगे तो हम दोनों का एक म्यूचुअल बेनिफिट है इसके अंदर। सो ऑब्जेक्टिव की अलाइनमेंट करना, विन विन सिचुएशन क्रिएट करना, फिर निगोशिएशन के तमाम तर पैरामीटर्स को इस्तेमाल करना, गुड लिस्टिंग, और अगर कोई पॉइंट आता है तो लॉजिकल रीजन दे के उसको सेटिस्फाई करना, बेनिफिट सेलिंग करनी। सो ये तमाम चीजें, गुडविल क्रिएट करनी। सो आपने ये कर लिया, फिर आपने कहा कि जी अब मैं पहिए को आगे बढ़ाता हूँ। सो अब मैं जाके प्लान करता हूँ कि जी अब मेरे पास नॉलेज आ गया है, डाटा एनालिसिस से मैंने कुछ फाइंडिंग्स निकाल ली हैं, उन फाइंडिंग्स की एक्शनेबल इनसाइट्स भी निकाल ली हैं। कि मैंने आज के जो मॉर्निंग ब्रीफ की अपने सेलमैन के साथ, तो मैंने उसको बताया कि देखो कल तुम इतनी दुकानें छोड़ के आए थे, इतनी आपको करनी चाहिए, कल आपकी प्रोडक्टिविटी ये थी, आज आपकी ये होनी चाहिए। इस प्रोडक्टिविटी के एवज आपका इतना वॉल्यूम बढ़ेगा, उससे आपको भी कमीशन बढ़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन की सेल भी होगी, डिस्ट्रीब्यूटर की प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ रही होगी। सो ये वाली ऑब्जेक्टिव अलाइनमेंट आपने कर ली, प्लान आपने किया, आपने टास्क असाइनमेंट किया आपस में कि मेरे जिम्मे ये काम, आपके जिम्मे ये काम, ऑब्जेक्टिव अलाइनमेंट हो गए, कमिटमेंट हो गई, लोगों को मोटिवेट किया, और उसके बाद आपने कहा कि लो जी लेट्स गो एंड टाइमली हिट द मार्केट। आपने एक एक्शन किया और उसको बड़ा राइटली एग्जीक्यूट कर लिया। एग्जीक्यूशन के बाद आपने कुछ चीजें अचीव की, उस रूट की आज के दिन की सेल्स ली, उस दिन का जो आपका ऑब्जेक्टिव था आपने वो सेलें भी उठा ली। आपने अगर कोई पर्सनल सेलिंग में थे, आप मेडिसिन कंपनी में, आप बैंकिंग प्रोडक्ट्स में हैं, तो आज के दिन का जो भी ऑब्जेक्टिव था उसको आपने मीट किया। तो साथ ही आपने कुछ फीडबैक भी लिए दिए, आपने ये निकाला कि क्या बेहतरी लाई जा सकती है, वो बेहतरी आपने अगले दिन के नॉलेज में डाली, और फिर दोबारा से डाटा एनालिसिस और वही वाली सारी एक्शनेबल इनसाइट। आप चीजें करते चले जाएं, प्योरिफिकेशन की तरफ बढ़ते चले जाएं, परफेक्शन की तरफ बढ़ते चले जाएं, चीजों के अंदर से इनसाइट्स निकालते चले जाएं, उन इनसाइट्स को नॉलेज डाटा एनालिसिस के अंदर, एक्शनेबल इनसाइट्स के अंदर, अपने टेक्निकल नॉलेज की इन्हांसमेंट के अंदर, निगोशिएशंस के अंदर, एग्जीक्यूशन एक्सीलेंस के अंदर एड्रेस करते चले जाएं, मेजर करते चले जाएं, फाइंडिंग्स लेते चले जाएं, दोबारा से बेहतरी करते चले जाएं। इस साइकिल, BML साइकिल, ये चलता रहेगा, आपकी चीजें इंप्रूव होती चली जाएंगी और आप अपनी उस टेरिटरी के अंदर चंद दिन के अंदर एक परफेक्शन मोड में आ जाएंगे, एक बेहतरी ले लेंगे। दिस विल हेल्प यू टू गेट अ बेटर बिजनेस, दिस विल हेल्प यू टू बिकम अ सेल्स चैंपियन, क्योंकि विदाउट कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ इंप्रूवमेंट लाई नहीं जा सकती। और उसके लिए ये कुछ हमारी छोटी सी काविशें हैं एस्पायर के प्लेटफॉर्म से। आप लोगों के लिए उम्मीद है कि इससे कुछ सेटिस्फेक्शन जरूर आई होगी। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, और अगर कोई इनपुट है तो प्लीज वो भी जरूर दें। विद दिस लास्ट स्लाइड, सो आज का जो टॉपिक है, जो कोर्स है, वो कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। कोई अगर इनपुट या कोई आप लोगों के फीडबैक हो तो प्लीज जरूर दीजिएगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर इट। थैंक यू सो मच। Over to my facilitator, Danial Shah Sahab. It's over to you. That's all from my side. Thank you very much, audience. बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया आप लोगों के साथ नॉलेज शेयरिंग का, एंड आई एम होपफुल कि इनमें से कुछ पॉइंट्स अगर कहीं पे वैल्यू एडिशन कर सकें तो मैं समझूंगा कि मेरे आज का बैठने का और तमाम बातचीत करने का पर्पस पूरा हो गया, क्योंकि वैल्यू एडिशन इज समथिंग जो कि हासिल हसूल है इस पूरी ट्रेनिंग मॉड्यूल का। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।
Thanks all participants. Thanks for joining in. I have attached the feedback form in the chat box. Kindly please send it to us so that we can improve much better.